Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today in this video we will have some discussion on molecular mass as well as percentage composition. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Molecular mass. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the constituent atoms which are present in one molecule of that substance. Means if I have a molecule here, so this is one molecule of NaCl. In this molecule certain atoms are there. I have atom of sodium as well as chlorine. So if I need to calculate the molecular mass of this molecule, then I have to add the atomic mass of the given atoms present in the molecule. So अगर मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, so what I will do? I will write atomic mass of sodium because यहाँ मॉलिक्यूल में सोडियम है plus atomic mass of chlorine. Okay, and it is denoted by a symbol capital M. मॉलिक्यूलर मास का एक यूनिट भी होता है जिसको हम लोग AMU या फिर यूनिफाइड मास स्मॉल यू करके भी लिख सकते हैं. Now I have certain elements and their atomic mass written against them. So hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, like this I am having total 15 elements here, and against them I have written their atomic masses. So hydrogen का atomic mass होता है 1 and यहाँ U लिखी हूँ. So this U is unified mass. So मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ. Here U means unified mass and U होता है यहाँ पर यूनिट, मास का यूनिट है यहाँ पर. लाइक हम लोग जो ग्राम लिखते हैं यहाँ पर इसका यूनिट होता है U. वैसे ही फॉर कार्बन आई हैव 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U एंड फॉर कॉपर 63.5U, जिंक 65.38U. सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एटमिक मासेस है, इसको याद रखना पड़ता है. सो अभी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. लाइक आई हैव I need to calculate molecular mass of sodium chloride. So what I will do? I will go through this formula like atomic mass of this first atom, that is sodium, plus atomic mass of chlorine. So sodium का atomic mass कितना है? यहाँ पर कितना लिखा है sodium का atomic mass? I have here sodium का is 23U and chlorine का है 35.5. बस इन दोनों को हम लोगों को यहाँ पर प्लस करना है. So ये प्लस हो जाएगा and I will get 58.5U. Similarly, let's solve some more questions. So calculate the molecular mass of water. Water का यहाँ पर molecular mass निकालना है and मीन्स पहले से ही यहाँ पर atomic mass दे दिया रहता है. Certain cases में नहीं देता है तो उस समय हम लोगों को अपना बुद्धि लगाना पड़ता है. So atomic mass of hydrogen is 1 and oxygen is 16U. So what to do first? So the first step is we have to write the molecular formula of the given compound. So यहाँ पर water का बात हो रहा है. So at first we will write the molecular formula of water. So it is H2O. Now we will calculate the molecular mass. So देखो यहाँ क्या करना है. सबसे पहले हाइड्रोजन का करेंगे because हाइड्रोजन सामने में है. हाइड्रोजन के पास में there is one subscript that is 2 here. So we will multiply that 2 with the atomic mass of hydrogen. अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 into atomic mass of hydrogen होता. Similarly after hydrogen we will do plus. ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोई भी नंबर नहीं लिखा है, सबस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है. सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं या फिर 1 इंटू एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है 1. सो 2 इंटू 1 प्लस एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 तो यहाँ पर 16 लिखे. 2 इंटू 1 2 प्लस 16 इट इज़ 18U. सिमिलरली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड यहाँ पर एटमिक मास नाइट्रोजन का दिया है 14, हाइड्रोजन का दिया है यहाँ पर 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16. इन U मीन्स ऑल दीज आर इन U. सो नाउ द फर्स्ट स्टेप वी विल राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट. सो अमोनियम सल्फेट ऐसा दिखता है. देखो इसके लिए आप लोगों को क्रिस क्रॉस मैथड यूज़ करना पड़ेगा. सो क्रिस क्रॉस मैथड को यूज़ करके राइट द करेक्ट फार्मूला, अदरवाइज आप लोगों का सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. देन मॉलिक्यूलर मास. How to calculate the molecular mass? So we will see यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ या कितना कौन से एलिमेंट के साथ यहाँ कितना नंबर लगा हुआ है. ओके, सो फर्स्ट आई हैव नाइट्रोजन.
नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर कुछ सबस्क्रिप्ट है, यहाँ नहीं है, बट एक चीज़ देखो, नाइट्रोजन एक ब्रैकेट के अंदर में है और उस ब्रैकेट के बाहर में 2 है। दैट मीन्स ये जो 2 है वो नाइट्रोजन के लिए भी है एंड हाइड्रोजन के लिए भी है। सो यहाँ पर मैं 2 लिखी हूँ इंटू एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। देन प्लस आई हैव हाइड्रोजन हियर। हाइड्रोजन का कितना होगा, दिस 4 इंटू 2 दैट विल बी 8 इंटू atomic mass of hydrogen. Then again plus I have sulfur, nothing is written here, no subscript, directly atomic mass of sulfur, यही लिखना है. Then plus I have oxygen, oxygen के साथ 4 लगा हुआ है, so 4 into atomic mass of oxygen. Now information यहाँ पर जितना भी दिया है atomic mass उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे. So 2 into atomic mass of nitrogen is what? 14, it is given. We will write here 14. इसको ब्रैकेट में रख देना, कंफ्यूज नहीं होंगे. प्लस 8 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो 8 इंटू 1. प्लस एटमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर इज 32. प्लस 4 इंटू, इसको भी ब्रैकेट दे देते हैं, एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 16. सबको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर 132 AMU. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में आया था, क्लास 9 बोर्ड में. ओके, सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज CuSO4.5H2O. देखो यहाँ पर क्रिस्टल लिखा है, सो क्रिस्टल आएगा तो हम लोग को यहाँ .5H2O लगाना है, बिकॉज हम लोग को पता है कि जो 5H2O होता है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट ओनली इम्पार्ट सर्टन शेप टू द गिवन सॉल्ट. ओके, देन द एटमिक मास इज गिवन ऑफ कॉपर 63.5, सल्फर का दिया है 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. सो द फर्स्ट स्टेप विल राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये तो ऑलरेडी दिया है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए. देन मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कॉपर. कॉपर में कोई नंबर नहीं है, डायरेक्टली 1 इंटू कॉपर का कितना दिया है 63.5, इसको यहाँ पर लिख देंगे. देन प्लस सल्फर के साथ भी कोई नंबर नहीं है, 1, वी विल राइट 1 इंटू, या फिर 1 नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली 32 लिख सकते हैं. देन प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है 4, सो वी विल राइट 4 इंटू, ऑक्सीजन का एटमिक वेट कितना होता है, एटमिक मास 16, हम लोग यहाँ पर 16 लिखेंगे. देन यहाँ पर एक डॉट है, ये नंबर तो आप लोग पहली बार कर रहे हो, अगर आप लोगों को इस टाइप से कुछ डॉट वाला मिलता है तो डॉट के जगह में भी नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं वैसे ही करना है, प्लस किए. देन बाहर में क्या है ये 5, एंड 5 के बाद आई हैव H2O. अगर यहाँ पर 10 रहता, 20 रहता, 7 रहता, कुछ भी रहता, उसको हम लोग ऐसे बाहर लिखते. देन वी हैव टू गिव ब्रैकेट, एंड उस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ 5 के बाद जो भी मॉलिक्यूल दिया है, लाइक यहाँ पर H2O दिया है, उस H2O का यहाँ पर हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे. एकदम सिंपल है ये. 5 लिखी मैं. देन हाइड्रोजन के साथ कितना लगा है 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट कितना है 1 लिख दिए. देन प्लस ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 16. अभी इसको सॉल्व करेंगे. 1 इंटू 63.5, आई गॉट दिस. देन दिस वन इज 32. 16 into 4, 64, plus this is 5, 2 into 1, 2 plus 16, 18. सबको सॉल्व करेंगे, we will get this answer. This question is very important. This type of question, इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, it is very easy. Then we have percentage composition. Percentage composition is also a very easy concept. It is what? Percentage composition means it is the percentage by weight of each element present in it. मतलब सोच लो हमारे पास एक तो कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगी कि मेरे पास H2O है. H2O इज़ अ कंपाउंड, हम सबको पता है ये कंपाउंड होता है. तो उस कंपाउंड में लाइक अगर मैं कोई भी एलिमेंट का बात करी, लाइक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज उसमें कितना है, या फिर ऑक्सीजन उसमें कितना परसेंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, और उसका फॉर्मूला है ये. वेरी सिंपल. अगर हम लोगों को कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने बोलेगा कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है, सो हम लोग वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे.
टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल मीन्स वो एलिमेंट का वेट उस मॉलिक्यूल में कितना वो प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देखते हैं। एग्जाम्पल देख के बहुत जल्दी हम लोग समझ जाएंगे। लाइक यहाँ पर दिया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर में हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज बताना है। ईच एलिमेंट मतलब वाटर पहले किससे बना है, H2O से, तो हाइड्रोजन का भी निकालना है परसेंट एंड ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो पहला स्टेप इसमें होता क्या है, अगर आपको इस स्टेप का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहला स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ वाटर दिया है तो वाटर का निकालेंगे, अगर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड देता तो सोडियम क्लोराइड का निकालते। सो देखना आप लोग क्या कंपाउंड दिया है, तो वाटर का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे जैसे हम लोग पीछे निकाले थे। सो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट इज़ व्हाट, एटमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो डायरेक्टली उसका एटमिक मास लिखेंगे 16। तो ये हम लोग को मिल गया 18U। U लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इफ़ हम लोग वहाँ पर उसका यूनिट U नहीं लिखते हैं दैट विल बी रॉन्ग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लिए, नाउ क्या निकालना है, मास परसेंटेज। सो हर एक एलिमेंट का निकालना है, तो पहले हाइड्रोजन के लिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर आई हैव रिटन मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन का वेट कितना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इंटू 100। सो हाइड्रोजन का वेट पानी में कितना है, तो वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का हम लोग ये निकाले थे। हाइड्रोजन के लिए क्या किए थे, 2 इंटू 1 हम लोग किए हैं। सो हाइड्रोजन का एटमिक मास यहाँ पर कितना है, 2 है। मीन्स वाटर में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, ये 2। ये पूरा निकालना पड़ेगा, वहाँ पर 1 मत लिखना। यहाँ देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, यहाँ पर 2 निकला। सो वही मास को हम लोग यहाँ लिखेंगे। हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन निकला 2, उसको लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना निकला है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाले हैं, इट इज़ 18, नीचे 18 लिखेंगे, इनटू दिस 100। और यहाँ पर मैं यू लिख दी हूँ बिकॉज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो यू लिखते हैं, तो यू कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 9 जा। इसको सॉल्व किए तो आया 11.1%। दैट मीन्स पानी में और वाटर में हाइड्रोजन इतना परसेंट प्रेजेंट है। नाउ ईच एलिमेंट का बोला है तो हाइड्रोजन हो गया। अभी पानी में और कौन है, वाटर में ऑक्सीजन, तो अभी ऑक्सीजन का निकालते हैं। सो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। सो ऑक्सीजन का भी सेम फॉर्मूला, लेकिन ऑक्सीजन का वेट देखना है हम लोगों को। सो टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितना है वाटर में, फिर यहाँ चलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या निकला है, 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 आया था, इंटू 100। इसको भी सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 88.89%। सो ये था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कि 11.1% निकला, एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज इज 88.89%। सो इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। जितना भी न्यूमेरिकल्स दिया गया है रिलेटेड टू दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर मास, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना एग्जाम्पल्स हो सके सबको प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इफ़ अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।